Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in our last lecture, we started chapter 2 and name of the chapter is computer memory. Let's have a quick recap from your previous lecture. You get the introduction of computer memory. You also learned different characteristics of computer memory like capacity of a computer memory or data transfer rate or access mode. And then basic unit of memory like bit or byte and their representation in bigger units like kilobyte, megabyte and gigabytes. You also learn the concept of memory word, and then you learned types of computer memory on the basis of their retention power. Retention power means how long a memory can hold data, or on the basis of their built up or manufacture. In our today's lecture, we will focus on types of memory on the basis of the retention power, that for how long they can hold a data. Memories can be divided into two types: volatile memories and non-volatile memories. Memories which loses their contents or data when the power is turned off or if there is any interruption are called volatile memories. On the other hand, memories which does not lose their contents or data when the power is turned off are called non-volatile memories. राइट इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं कि जिनको हम वॉलेटाइल मेमोरीज कंसिडर करते हैं कि वो उस वक्त तक सिर्फ डेटा रिटेन कर सकती हैं या होल्ड कर सकती हैं जब तक उनको पावर सप्लाई मिलती रहे या इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे. ऐसी मेमोरीज वॉलेटाइल मेमोरीज. क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब ये है कि विच इज टेम्पररी और विच इज गोइंग टू बी फिनिश व्हेन इन सम सर्कमस्टांसेस. ठीक है, लेकिन ऐसी मेमोरीज चाहे उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना हो रही हो, उनको कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी ना मिल रही हो और वो डेटा रिटेन कर सकती हैं, उनके अंदर डेटा स्टोर रहेगा, दे आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरीज. That's why volatile memories are also called temporary memories, while non-volatile memories are called permanent memories. Examples of volatile memories are RAM, cache, and registers which are present inside the CPU. ठीक है, RAM, कैशे एंड रजिस्टर्स. रजिस्टर्स कहाँ होते हैं? सीपीयू के अंदर मौजूद हैं. इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे इन तीनों मेमोरीज को. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, एग्जांपल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरीज आर रोम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या जितनी भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यूएसबीज हैं, सीडीज हैं, दे आर टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरीज. और ये इसी पर्पस के लिए बनाई जाती हैं कि इवन इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोवाइड की जा रही हो सिस्टम को या जिस डिवाइस के अंदर ये लगी हैं, तब भी अपने डेटा को रिटेन कर सकें या होल्ड करके रख सकें या स्टोर करके रख सकें. ठीक है, तो इसलिए ये मेमोरीज बनाई जाती हैं. तो इस तरह की तमाम एग्जांपल्स जो डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं इवन इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोवाइड की जा रही हो या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट ऑफ हो जाए, ऐसी मेमोरीज नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल में आती हैं. ओवरऑल हायरार्की अगर हम देखें कंप्यूटर मेमोरी की, on the basis of over hierarchy of computer memory, there are two types of computer memory. One is called main memory and other are called secondary memory. यानी कुछ examples जो है वो main memory में आएंगी और बाकी examples जो हैं वो secondary memory में आएंगी. This is over hierarchy of computer memory, जिसको basic division भी कह सकते हैं. मेन मेमोरी जिसको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कंसिस्ट ऑफ टू फर्दर टाइप्स, रैम एंड रोम, और इनको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे. बट इट रैम हैज टू टाइप्स एज वेल, SRAM एंड DRAM. स्टैटिक रैम और इसको डायनामिक रैम कहते हैं. ये क्या होता है ये भी आपको लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा. देन रोम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू PROM, EPROM एंड EEPROM. ठीक है. Then in our next lecture we will discuss about secondary memory
and its types, sequential access and random access, और then sequential access की क्या types हैं और random access की क्या types हैं, इनको भी हम further one by one discuss करेंगे in our coming lectures. Coming to the main memory or primary memory, मॉडर्न कंप्यूटर्स में और स्पेशली डिजिटल कंप्यूटर्स में जो मेन मेमोरी के बगैर जो है कॉन्सेप्ट डिवाइसेस का, उनकी इंटरकनेक्शन का इज इनकम्प्लीट. मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी or primary memory as well. What is the purpose of main memory? That it holds data during processing. यानी वो डेटा जो प्रोसेस हो रहा होता है या मेमोरी के अंदर ओपन हुआ होता है और यूजर जिस डेटा के ऊपर काम कर रहा होता है, या हम इसको कहते हैं कि जो डेटा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कि इसको होल्ड करके रखती है. इट मीन्स कि आप कोई भी एप्लीकेशन जिसके ऊपर काम कर रहे हो, either you working on MS Word, like I'm working on this presentation, मैं इसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर काम कर रही हूँ, तो इट इज ओपन इन रैम और इन रैम स्पेशली विच इज अ टाइप ऑफ मेन मेमोरी. ठीक है, और आप कोई भी काम कर रहे हो, ये उसको उसकी जिसके ऊपर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, ये उसको होल्ड करके रखती है. अगर हम इसकी पर्पस की बात करें तो मेन मेमोरी के कंप्यूटर्स के अंदर लगाने के डिफरेंट पर्पस हैं. पहला पर्पस आपको बता दिया गया कि जिस डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, या जो प्रोसेस हो रहा है या जो एग्जीक्यूट हो रहा है किसी भी डिवाइस के अंदर, ये उसको होल्ड करके रखती है. ठीक है. सेकंड पर्पस, यूजर से रिलेटेड जितना भी डेटा है, यूजर जिस भी डेटा के ऊपर काम कर रहा है, आइदर वो सेटिंग्स कर रहा है, वो सिस्टम को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर रहा है, वो कोई भी सेटिंग्स कर रहा है, ठीक है, या उसने कोई एप्लीकेशन ओपन की या कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन कर रहा है, इसका बेसिक पर्पस उसको ओपन करके रखना है या वो एरिया प्रोवाइड करना है कि यूजर जिसके अंदर अपनी कंटेंट को या डेटा को रख के प्रोसेस कर सकता है. ठीक है. सेकेंडली, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रिजाइड करता है? हार्ड डिस्क के ऊपर. लेकिन उसका जो एक्टिव पोर्शन है, इट इज ऑलवेज लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी लाइक इन रैम. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की भी टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, जिसको आपने मेमोरी हायरार्की के अंदर देखा. जो एक्टिव पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, it will be loaded into RAM and then it will be executed. इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? ज़ाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज तो बहुत बड़ा होता है. ठीक है. सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिजाइड कर रहा होता है हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन उसका जो एक्टिव पोर्शन है, एक्टिव पोर्शन का मतलब ये है जो उसके एक्टिव प्रोग्राम्स है जिनको हम करंटली यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट को प्रोसेस करने के लिए, either they are basic settings of computer, either they are other like अगर हम कुछ सिस्टम के साथ अचानक से प्रिंटर अटैच कर देते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस ड्राइवर के प्रोग्राम्स होंगे जो हार्ड डिस्क में रिजाइड कर रहे होंगे, they will be loaded into मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, देन दे विल बी एग्जीक्यूटेड. तो सेकंड पर्पस प्राइमरी मेमोरी का क्या हो गया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्टिव प्रोग्राम्स हैं उनको ये होल्ड करके रख रही होती है. एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर गिवन टू द सीपीयू थ्रू इनपुट डिवाइसेस और दे आर इंटरनली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन सिर्फ हम नहीं दे रहे होते इनपुट डिवाइस के जरिए से कंप्यूटर को, इंटरनली भी सीपीयू बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है हमारी उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमने इनपुट डिवाइसेस के जरिए से दी होती हैं. ठीक है. इनपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो. दे ऑल आर स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. और इसके अलावा बूटअप प्रोसेस के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में स्टोर हुई होती हैं, और वो जिस पार्ट में स्टोर हुई होती हैं वो रोम कहलाती है. रोम को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली हमने तीन जो है वो पर्पस पढ़े हैं मेन मेमोरी के. एक ये कि जो यूजर से रिलेटेड डेटा है कि यूजर जिस डेटा के ऊपर काम कर रहा होता है ये उसको स्टोर करके रखती है. ठीक है. इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्टिव पार्ट होता है यानी वो
पार्ट जिसके थ्रू हम कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको स्टोर कर रही होती है, और ये रैम के अंदर लोड होते हैं, यूजर का भी डेटा और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्टिव प्रोग्राम से ये रैम के अंदर लोड होते हैं। ऑन द अदर हैंड मेन मेमोरी की को टाइप जिसको रोम कहा जाता है, वो बूटअप प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होल्ड करके रखती है, जो एक सिस्टम को अपने बूटअप प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है। वो भी मेन मेमोरी की एक टाइप रोम के अंदर स्टोर हो रही होती हैं, और ये कंपलसरी होती हैं बूटअप प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। Now coming to the structure of main memory, yeah, how a memory look like. Normally main memories are in the form of chip memories, और chip memories का concept आपने first lecture के अंदर पढ़ा है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करके जो मेमोरीज बनाई जा रही होती हैं, दे आर चिप मेमोरीज, इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल्स जो चिप मेमोरीज की हो सकती हैं, दैट इज रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी। और ये एग्जांपल्स जो हैं और बेसिस पे भी हैं, लेकिन स्ट्रक्चर या लुक के लिहाज से भी अगर हम देखें तो मेन मेमोरी जो है वो चिप मेमोरीज की कैटेगरी में आती है। नॉर्मली दे आर अटैच्ड और इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। अगर हम इंटरकनेक्शन देखें मेन मेमोरी का या प्राइमरी मेमोरी का विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर इंस्टॉल की हुई होती है, कि जहाँ पे हर डिवाइस के साथ इसका कनेक्शन होता है। They are input devices, either they are output devices, either it is CPU or central processing unit, or either it is secondary memory or permanent memory. It is very important location जहाँ पे primary memory जो है वो locate कर रही होती है। This is block diagram of मदरबोर्ड, ठीक है, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट डिवाइस नजर आ रही हैं। एवरी डेटा विच इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर first goes into the primary memory, ठीक है। Then for processing, instructions are transferred to the central processing unit, जिसको CPU भी कहा जाता है और हाई प्रोसेसर भी कहा जाता है, और मॉडर्न कंप्यूटर्स में या माइक्रो कंप्यूटर्स में इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यानी पहले जितनी भी डेटा इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आएंगी, और फॉर एग्जीक्यूशन इट विल बी ट्रांसफर इनटू CPU। देन अगर हमने परमानेंटली स्टोर करना है तो प्राइमरी मेमोरी से ही डेटा जो है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर लाइक हार्ड डिस्क के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हार्ड डिस्क लगी हुई है एज सेकेंडरी स्टोरेज, और प्राइमरी मेमोरी से ही हमें डेटा आउटपुट यूनिट के ऊपर लाइक मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा होता है, और बाकी जितने भी आउटपुट यूनिट्स हैं उनको भी डेटा प्राइमरी मेमोरी से ही ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इस इंटरकनेक्शन से, इस ब्लॉक डायग्राम से आपको प्राइमरी मेमोरी की जो लोकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट जगह पे है वो आई होप कि समझ आई होगी। If we talk about types of main memory, there are 3 types in modern computers. पहले जो है इंटरनल प्रोसेस मेमोरीज को इसकी टाइप्स में कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन विद एडवांसमेंट कुछ नई तरह की मेन मेमोरीज बिल्ड की गई हैं। सो नाउअडेज there are 3 types of main memory. इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, ऐसी मेमोरीज जो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई होंगी, सीपीयू के अंदर बिल्ड की गई होंगी। क्या रीजन है इसको हम आगे देखेंगे। देन रैम, random access memory is another type of memory, and ROM or read only memory is third type of main memory. First we will discuss internal processor memories. Internal processor memories नाम से ही हमें पता चल रहा है memories which are built inside the CPU or inside the processor are called internal processor memories. पर्पस क्या है मेमोरीज को प्रोसेसर के अंदर बिल्ड करने का? अगर हम इस इंटरकनेक्शन को देखें, ठीक है, इवन प्राइमरी मेमोरी इज नियर टू सीपीयू, और सीपीयू को यहाँ से डेटा फेच करके एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल नहीं है। इवन देन with advancement to make processors more faster, ताकि वो डेटा जो है वो ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा स्पीड के साथ एक्सेस कर सकें। Some of the
memories are built inside the CPU. Otherwise यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हुआ करता था, इसका कॉन्सेप्ट था हमेशा से, ठीक है। और हम CPU को आगे डिटेल से पढ़ेंगे और इसके ये दोनों यूनिट्स भी पढ़ेंगे। अदरवाइज जब भी हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं CPU की, तो इसके अंदर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही आता है, ठीक है। अदरवाइज देयर आर ऑल्सो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज, ठीक है, इसके अंदर बिल्ड की गई हैं ताकि CPU को अगर बहुत क्विकली कोई डेटा फेच करना हो तो वो यहीं से फेच कर ले, बजाय वो प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी से जाके फेच करे। और इस तरह की मेमोरीज क्या कहलाती हैं? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज, right? They are extremely fast to access for the CPU as they are built directly inside the CPU, ठीक है। कैशे मेमोरी और जो रजिस्टर्स मौजूद होते हैं प्रोसेसर के अंदर, they are examples of इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कैशे मेमोरी एंड जो रजिस्टर्स मौजूद होते हैं CPU के अंदर बिल्ट हुए हुए, they are examples of कैशे मेमोरी and examples of internal processor memory. First, we will discuss cache memory, which is built inside CPU, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे there are 3 types of cache memory, but one which is built inside CPU, अभी हम उस मेमोरी की बात कर रहे हैं, उसको कैशे मेमोरी कहा जाता है। They are very fast, even they are very small in amount, but they are very fast memories to access point of view से, ठीक है, कि CPU को इनको एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है, तो हम इनको इस लिहाज से हाई स्पीड कह रहे होते हैं। एंड दे आर बिल्ट using semiconductor material, so they are called semiconductor memories. आपने जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि मैग्नेटिक मेमोरीज भी होती हैं और ऑप्टिकल मेमोरीज भी होती हैं, ठीक है। बाय नेचर दे आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज एज दे आर इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, ठीक है। और ये इनकी जो बेस होती है जिसके ऊपर सर्किट्स इंटीग्रेट किए जाते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरीज। As they are directly accessible by the CPU, so they are considered very fast. पर्पस क्या होता है कैशे मेमोरी का? जो कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बाद का कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू रैम। और इसका पर्पस क्या था कि जो मेन मेमोरी के अंदर करंटली डेटा या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका कुछ एक एक्टिव पोर्शन जो है वो CPU के अंदर जो आना है, ताकि CPU को क्विकली एक्सेस कर सके, उसको जो है वो कैशे मेमोरी के अंदर रखा जाता है, ताकि CPU को जो एक्टिव पोर्शन है उसको लेने के लिए मेन मेमोरी के अंदर स्विच ना करना पड़े, ठीक है। और जब भी CPU को कोई डेटा रिक्वायर्ड होता है अपनी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, तो वो सबसे पहले हमेशा कहाँ चेक करता है? कैशे मेमोरी के अंदर, जो उसके अंदर ही मौजूद होती है, ठीक है। अगर वो वहां नहीं मिलता तो देन वो फेच करता है इसको मेन मेमोरी से। अब नहीं मिलता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिकॉज कैशे मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी, वो डेटा को परमानेंट होल्ड करके नहीं रख रही होती है, क्योंकि ये टाइप है किसकी? मेन मेमोरी की। और मेन मेमोरी को हमने कहा कि इसकी कुछ टाइप्स टेम्पररी मेमोरी होती हैं, और कैशे मेमोरी के अंदर कभी भी डेटा एक खास पीरियड ऑफ टाइम से ज्यादा नहीं स्टे कर रहा होता, उस खास फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद, और वो सेकंड्स में टाइम होता है के बाद डेटा जो है CPU को मेन मेमोरी से ही फेच करना पड़ता है। लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम में अगर CPU को वो डेटा चाहिए तो वो पहले कहाँ चेक करेगा? कैशे मेमोरी के अंदर, ताकि वहां से क्विकली एक्सेस कर सके। लेकिन अगर वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है देन डेटा विल बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, तब जो है वो CPU को डेटा कहाँ से फेच करना पड़ेगा? मेन मेमोरी के अंदर से। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि लेट्स सी मैं एक चीज डाउनलोड के ऊपर लगाई हुई है और मैं साथ में प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन छोड़ के ये देखने जाती हूँ
कि मेरा डेटा कितना डाउनलोड हुआ और मैं क्लिक कर देती हूँ, इट मीन्स कि इस वक्त वो मेरा एक्टिव प्रोग्राम हो गया जो डाउनलोडिंग वाला था। अगर मैं विद इन फ्यू सेकेंड वापस आ जाती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है, तो सीपीयू इसको पहले कहाँ चेक करेगा? कैशे मेमोरी के अंदर, और वो कैशे मेमोरी जो सीपीयू के अंदर बिल्ट हुई हुई है। लेकिन मैं उस टाइम लिमिट के बाद आती हूँ, उस टाइम लिमिट के बाद कि जितनी देर के लिए अलाउ किया हुआ था उस डेटा को कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करना, तो देन जो है वो सीपीयू को डेटा जो है वापस मेन मेमोरी से फेच करना पड़ेगा। If we talk about the types of cache memory, there are 3 types of cache memory: level 1 or L1, level 2 L और L2 जिसको शॉर्टली कहा जाता है, level 3 जिसको शॉर्टली जो है वो L3 कहा जाता है। This is interconnection or block diagram of cache memory with CPU and memory, main memory. पहले सिर्फ एक ही या सिंगल लेवल कैशे मेमोरी बिल्ड की जाती थी जो कि मदरबोर्ड के ऊपर मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान में रहती थी। इट मींस इट इज मोर नियरर टू सीपीयू एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। और पर्पस वही है कि ताकि फास्ट एक्सेस किया जा सके, ठीक है। पूरे का पूरा प्रोग्राम, एक्टिव प्रोग्राम इसके अंदर लोड नहीं होता, सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्टिव प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर लोड होता है, जिसके ऊपर यूजर जो है सीपीयू काम कर रहा होता है। आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि सीपीयू वर्ड बाय वर्ड डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, तो जो एक्टिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली कैशे मेमोरी के अंदर लोड किए जाते हैं। आप जब आगे और पढ़ोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझ आएगा कि हम वर्ड को एग्जांपल लेते हैं, जैसे पिज्जा के हम स्लाइस बना लेते हैं। वी कैन नॉट प्रोसेस अ कंप्लीट पिज्जा एट अ टाइम। हम हमेशा उसको स्लाइस की फॉर्म में करके उसको खा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से अगर सीपीयू को फाइल दी जाती है विच इज ऑफ 128 GB या 256 GB और इट इज ऑफ सॉरी जीबी की बात कर रही हूँ, लाइक 256 MB की फाइल दी हुई है, या हमने उसको 520 MB की फाइल दी है, 1 GB की भी फाइल दी है, तो उसको कंप्लीटली सीपीयू के अंदर लोड करके प्रोसेस नहीं करेगा, वो उसको वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करेगा। जो कंप्लीट वो लोड हुई हुई होगी वो एप्लीकेशन, वो मेन मेमोरी के अंदर लोड हुई हुई होगी, ठीक है। यूजर जिसके ऊपर काम कर रहा हो 1 GB की भी हो सकती है और वो उससे कम की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर कितने साइज की लगी हुई है, ठीक है। लेकिन उसका जो एक्टिव पोर्शन है वो वर्ड बाय वर्ड विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, इनटू द कैशे मेमोरी, और देन वो सीपीयू के अंदर जो कैशे लगी हुई जिसको L1 कहा जाता है उसके अंदर लोड होके उसको प्रोसेस किया जाएगा। हेयर इज मल्टी लेवल कैशे कॉन्सेप्ट कि जब एक से ज्यादा कैशे लगी हुई हो, जो लेवल 1 कैशे होती है ये एक्चुअली सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है, जिसको लेवल 1 कैशे कहा जाता है, और ये डायरेक्टली और सबसे ज्यादा फास्ट एक्सेस टाइम के साथ एग्जिस्ट कर रही होती है। बाकी लेवल 2 और लेवल 3 जो कैशे मेमोरीज हैं वो इन बिटवीन होती हैं सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ठीक है। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट के जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर पूरा जो है एप्लीकेशन ओपन हुई हुई होती है, और वहां से ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है बड़े बड़े ब्लॉक्स जो है वो कैशे मेमोरी के अंदर आते हैं। देन दे आर ट्रांसफर्ड वर्ड बाय वर्ड इनटू द रजिस्टर्स, और वो मेमोरी जो सीपीयू के अंदर है, और ये भी एक इंटरनल मेमोरी की टाइप है जिसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है कौन सी? कैशे मेमोरी, जो यहाँ सीपीयू के अंदर हो सकती है, जिसको लेवल 1 कैशे मेमोरी कहा जाता है, या वो सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान हो सकती है, जिनको लेवल 2 और लेवल 3 कैशे मेमोरी कहा जाता है। जो दूसरे हैं वो रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने के लिए दी हुई है कि आपके अक्सर घरों में क्या होता है कि जो आपकी मदर्स हैं जो ज्यादा क्वांटिटी होती है किसी चीज की वो एक बड़े जार में डाल के कहीं सामने रख लेती हैं, लेकिन बहुत सारे जो शेफ हैं या हमारी जो मदर्स हैं एग्जीक्यूशन के लिए या कुकिंग के लिए फॉर टाइम की जो चीज उनको चाहिए होती है वो किसी एक प्लेट के अंदर 1 टीस्पून और 2 टीस्पून जितनी रिक्वायर्ड होती है, या डिफरेंट छोटे छोटे पॉट्स के अंदर डाल के रख लेती हैं।
It can be 1 teaspoon or it can be 2. Let's see, 2 टीस्पून उन्होंने डाल के रखी या टेबल स्पून डाल के रखी, लेकिन उन्होंने जब यूज की हांडी के अंदर तो हाफ यूज की, तो वो दोबारा जो इन बड़े जार्स के अंदर जाके नहीं उनको फेच करेंगी, बल्कि वो यहीं देखेंगी अगर वो यहाँ मौजूद है तो वो इससे जो है वो हांडी में ट्रांसफर करेंगी, या उन्होंने अगर एक प्लेट में डाल के रखी हुई थी तो पहले वो इससे वो मसाला या वो स्पाइस जो है वो पहले हांडी के अंदर ट्रांसफर करेंगी। अगर वहां नहीं होगा then she will look to the bigger jars. Right. Coming to the range or storage capacity of cache memories, if we talk about L1 cache, तो L1 cache की जो मिनिमम रेंज है वो 8 किलोबाइट है, और मैक्सिमम हो सकती है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स में वो 64 किलोबाइट है। अदरवाइज जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं जो बहुत ही फास्ट एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनके अंदर ये 1.5 MB भी इसका साइज होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया कि ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बिल्ट हुई भी होती है, एंड इट हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। L1 जो कैश है एज इट इज बिल्ट इनसाइड द CPU और माइक्रो प्रोसेसर, सो इट हैज फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। फास्टेस्ट एक्सेस का मतलब है CPU को इसको एक्सेस करना सबसे आसान होता है या फास्टली इसको एक्सेस कर सकता है। इफ यू टॉक अबाउट L2 एंड L3, जो L2 है जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है दैट इज 256 KB टू 8 MB, इट मीन ज्यादा है उसके मुकाबले में। ठीक है, और ये मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं, ये CPU के इनसाइड नहीं होती हैं, एंड दे हैव स्लोअर एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू L1 कैशे। ठीक है, और बट दे हैव फास्टर एक्सेस टाइम देन रैम। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई होप। और ये L3 की स्टोरेज कैपेसिटी है कि जो L3 कैशे है इट कैन रेंज फ्रॉम 1 MB टू 32 MB। देखें ये L2 से भी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, बट इट इज एज कंपेयर टू L2 थोड़ी सी दूर होती है। ठीक है, तो इसका एक्सेस टाइम L2 से भी कम होता है, लेकिन इसका एक्सेस टाइम जो है वो मेन मेमोरी से ज्यादा होता है। कमिंग टू द सेकंड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी विच इज प्रोसेसर्स रजिस्टर्स, या वो मेमोरी जो प्रोसेसर के अंदर ही है। ठीक है, इसको भी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में कंसिडर करेंगे। एक L1 कैशे जो प्रोसेसर के अंदर बिल्ड की गई है, और दूसरे रजिस्टर्स होते हैं जो कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है रजिस्टर्स का, के जो प्रोसेसर के अंदर बिल्ट हुए होते हैं। दे आर स्मॉल साइज्ड मेमोरी। ठीक है, और स्मॉल साइज्ड इन अ सेंस के नॉर्मली आइदर दे कैन स्टोर 32 बिट्स और दे कैन स्टोर 64 बिट्स। आजकल मॉडर्न कंप्यूटर में दे कैन स्टोर 64 बिट्स। दे आर मच स्मॉलर देन कैशे मेमोरी। ठीक है, और इनका पर्पस क्या है CPU के अंदर बिल्ड करने का, कि वो डेटा कि जो CPU जिसके अंदर कैलकुलेशंस कर रहा है, वो नंबर्स, वो वैल्यूज, ठीक है, जिसके ऊपर CPU ने इंस्ट्रक्शंस को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। हम इनको ऑपरेंड्स भी कहते हैं। डेटा को हम जब वो CPU के अंदर आ जाते हैं, जब तक वो मेन मेमोरी के अंदर है, कैशे मेमोरी के अंदर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट। यानी मेन मेमोरी के अंदर पूरी एप्लीकेशन ओपन हुई हुई है, ठीक है, और L2 और L3 के अंदर जो है और L1 के अंदर डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक या वर्ड बाय वर्ड आ रहा है। बट रजिस्टर्स की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो सिर्फ बिट्स की फॉर्म में, आइदर दे कैन स्टोर 32 बिट्स और 64 बिट्स, ये मैं बात कर रही हूँ माइक्रो कंप्यूटर्स की, स्टोर कर सकते हैं। अब 32 बिट्स जाहिर वो छोटी सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इनको ऑपरेंड कह रहे होते हैं यहाँ पे, कि वो नंबर्स, वो ऑपरेंड्स के जिनके ऊपर करंटली CPU एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, दे आर स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। ठीक है, देयर आर वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स built or manufactured inside the CPU, जिनको हम आगे जाके अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वन इज एक्यूमुलेटर, जिसको शॉर्टली AC कहा जाता है, डेटा रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, और देन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। इनको हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हर एक रजिस्टर का क्या पर्पस है। यहाँ सिर्फ आपने ये कॉन्सेप्ट लेना है कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के अंदर जो सेकंड type आती है, they are registers, they are very small in size, they can store data in bits,
और जो करंटली वो ऑपरेंड या वो कंटेंट या वो नंबर्स जिनके ऊपर सीपीयू एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इट इज स्टोर्ड in these registers. Coming to the second type of main memory, that is RAM, which is very important in digital computers. They are high-speed memories which are normally installed on motherboard. Random access memories, नाम से पता चल रहा है, आपने पहले पढ़ा, कुछ memories होती हैं कि जो randomly, जिनका access mode random होता है, कि CPU जो है वो किसी भी वक्त उनके किसी भी एड्रेस से जाके डेटा उठा सकता है, इंस्टेड ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस के जिसमें हमें अगर फिफ्थ लोकेशन वाला डेटा उठाना है सीपीयू को, तो पहले वाले फोर्थ लोकेशंस को उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तब वो फिफ्थ उठा सकता है. सो दे आर फास्ट. आपने ये भी पढ़ा कि अगर वो मेमोरीज के जिनका एक्सेस मोड रैंडम होता है वो फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल एक्सेस. ठीक है. रैंडम एक्सेस मेमोरीज, हमने जब मेन मेमोरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने पढ़ा कि मेन मेमोरीज जो यूजर रिलेटेड डेटा है या जो एक्टिव प्रोग्राम्स हैं उनको होल्ड करके रखती हैं. सो बेसिकली जो एक्टिव प्रोग्राम्स हैं या जो यूजर रिलेटेड डेटा है, दिस इज ऑलवेज स्टोर्ड इनटू रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरीज. और जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, आइदर वी ओपन इट फ्रॉम हार्ड डिस्क, यूएसबी और सीडी, इट इज ऑलवेज लोडेड इनटू रैम. ठीक है, पहले वो रैम के अंदर लोड होता है और देन वो एग्जीक्यूट होता है. यानी रैम मेन मेमोरी की वो टाइप है कि जो यूजर रिलेटेड डेटा को फैसिलिटेट कर रही होती है. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि मेन मेमोरीज जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एक्टिव प्रोग्राम्स हैं उनको होल्ड करती हैं, तो वो एक्चुअली रैम के अंदर लोड हो रहे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्टिव प्रोग्राम्स हैं. इसके अलावा ALU क्या है? ALU इज, हमने यहाँ पे इंटरकनेक्शन वाली जो डायग्राम था यहाँ पे देखा था, ये is ALU. ALU में वो एक्चुअल प्रोसेसिंग कर रहा होता है, यानी वो नंबर्स, वो ऑपरेंड्स जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होते हैं. ठीक है, और देन सीपीयू जब उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर लेता है, जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर ऑलवेज ट्रांसफर टू द रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी. राइट. So there are three basic functions of random access memory कि जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे या एक्टिव करेंगे या जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे, ठीक है, इट विल बी लोडेड इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी. या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे उस प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन के लिए जो अपना पोर्शन एक्टिवेट करेगा वो भी रैम के अंदर लोड होगा, और प्रोसेसिंग के बाद ALU जो डेटा ट्रांसफर करेगा इट विल बी ट्रांसफर इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम. स्टोरेज कैपेसिटीज की या रेंज की अगर हम बात करें तो आजकल MBs में तो कम ही आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे. जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो MBs में होती है अगर किसी के पास ज़ाहिर घर में है. अदरवाइज आजकल जो हम बाय कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स, दे कम फ्रॉम 2 GB to 16 GB रैम. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप साइज इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, अगर आप जो है ऐसी गेम्स खेलते हो कि जो बहुत ही ग्राफिक इन्वॉल्व हैं और जिनके अंदर जो इंटेंसिव कंप्यूटिंग इन्वॉल्व है जिसके अंदर, ठीक है, जो उसके लिए आपको डेफिनेटली 8 GB या 16 GB की रैम लगवानी पड़ेगी. बट विद नॉर्मल कंप्यूटिंग जो है हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं दे उनके अंदर जो रैम होती है दे हैव साइज 2 to 4 GB. If we talk about another importance of RAM in our computers is depends on its size. ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा रैम का, ठीक है, उतना बड़ा ये आपकी एप्लीकेशन का डेटा होल्ड कर सकेगी, उतने बड़े ब्लॉक्स ही होल्ड कर सकेगी. ठीक है, और उतना ही जो है वो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है वो ज्यादा होगी. ठीक है, इसके अलावा जितनी बड़े ये साइज की होगी, जो यूजर के
हैवी एप्लीकेशन से उनको भी सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा भी हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशंस जो है, हमारा कोई भी यूजर डेटा है वो विदाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। रैंडम डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी तो तभी हमारा जो यूजर्स डेटा है या जो सिस्टम के प्रोग्राम से वो एग्जीक्यूट हो सकेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी हमें बड़े साइज की रैंडम एक्सेस मेमोरी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बड़े साइज की मेमोरी कंप्यूटर के अंदर बिल्ड करवाते हैं, इट विल बी एक्सपेंसिव एंड जो ओवरऑल कॉस्ट है कंप्यूटर की वो भी क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। एंड सेकेंड ड्रॉबैक इज दैट इट इज volatile memory, that it lose its content when the computer is turned off. If we talk about types of RAM, there are two types of RAM, dynamic RAM and static RAM. Dynamic RAM is typical RAM जो हमारे computers के अंदर लगी हुई होती है and it is made up of using transistors along with capacitors. ठीक है, अगर हम assume करें कि ये cells हैं, मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर बिट्स स्टोर होंगी, नॉर्मली 8 बिट्स की फॉर्म में या 1 बाइट की फॉर्म में पूरा सारा डेटा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी के अंदर। तो डायनामिक मेमोरीज ऐसी हैं कि जिनके अंदर जो सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ यूजिंग कैपेसिटर्स। ठीक है, ये कैपेसिटर इज मेन कंपोनेंट जो डेटा को क्या करेगा या बिट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और कैपेसिटर्स अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो कि उनको रिचार्ज होने की जरूरत होती है। इट मीन्स कि ऐसी मेमोरीज के जो कैपेसिटर्स से मिलकर बनी होती है दे नीड पीरियोडिक रिफ्रेश। पीरियोडिक मीन्स कुछ टाइम के बाद उनको रिफ्रेश चाहिए होता है। अगर वो रिफ्रेश ना हो तो डेटा क्या हो जाएगा, डेटा विल बी लॉस्ट। जैसे हमारी बैटरीज होती हैं, अगर हम उनको रिचार्ज ना करें, ठीक है, लेकिन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज को एक पीरियोडिक रिफ्रेश की जरूरत होती है, कुछ कुछ टाइम के बाद एक उनको रिचार्ज करना पड़ता है एज दे आर मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स, अदरवाइज दे विल लूज देयर कंटेंट और डेटा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्टैटिक random access memories are made up using logic gates, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, जिनको फ्लिप फ्लॉप्स कहा जाता है। ठीक है, और इनको पीरियोडिक रिफ्रेश या रिचार्ज होने की जरूरत नहीं होती है। राइट, यहाँ पे लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें स्टैटिक रैम की तो दे आर मेड अप ऑफ यूजिंग लॉजिक गेट्स। जो कैशे मेमोरीज हैं वो एक्चुअली यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई कैशे मेमोरी की है, ठीक है, और डायनामिक में इसकी हमारी जो टिपिकल रैम है उसकी पिक्चर लगी हुई है। इट मीन्स कि अगर हम डिफरेंसेस देखें बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम तो एक तो ये कि जो टिपिकल रैम्स होती हैं हमारे कंप्यूटर में वो डायनामिक रैम होती हैं, और जो कैशे मेमोरीज होती हैं वो स्टैटिक रैम की एग्जांपल है। राइट, सेकेंडली चूंकि इनको पीरियोडिक रिफ्रेश की जरूरत होती है तो जिस टाइम ऑफ पीरियड के लिए, यानी इट इज अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, कोई नैनो सेकेंड में हो सकता है, रिफ्रेश हो रही थी उस टाइम सीपीयू इनको एक्सेस नहीं कर पा रहा होता, सो दे आर स्लो but they are cheap as well. On the other hand, static RAMs are faster than dynamic RAMs, but they are more expensive than dynamic RAMs. That's all from today's topic. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any queries, kindly do ask me in subject group.